वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है in association with Neerish Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BSOC 133 Sociology Theories. Starting from assignment 1, answer the following descriptive category questions in about 500 words each. Question number 1. Explain Durkheim's concept of solidarity. In what way does it contribute to the maintenance of social order? Let's discuss the answer. Different sector of society ने witness किया division of labor and Durkheim did not restrict his understanding to strictly economic exchanges. Durkheim के अनुसार division of labor एक social phenomena है और merits social explanation है. He opined that with increase in volume and density of population, volume और density of population के increase से एक given area में interaction और struggle for survival भी बढ़ जाता है. The modern society practice social differentiation in order to overcome this struggle for survival between the individuals. Individuals dependent रहे one another पर for specialized function जिससे social cohesion रहा और individual autonomy में increase observe हुआ. दुर्खिम ने बिलीव किया कि एक सोसाइटी में सोशल फैक्ट्स होते हैं जो एक्सरसाइज किए जाते हैं कंस्ट्रेंट के तरीके से इंडिविजुअल्स पर which was unlike thinkers John Stuart Mill and Jeremy Bentham Durkheim, who held that individuals were not autonomous or just engaged in utilitarian exchanges in the society. Moving on to the next question. Discuss the future of rationalized Western world with reference to the viewpoint of Weber. Let's discuss the answer. There are many scholars जिन्होंने अपना opinion दिया on the central themes of the rationality and rationalism को एक fundamental understanding के तरीके से समझा to Weber's work. वेबर ने रेफर किया रैशनैलिटी को लॉजिकल और कोहेरेंट आइडियाज के तरीके से और बिहेवियर के तरीके से जो गवर्न करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को. ये एक प्रोसेस है जिससे रैशनैलिटी अप्लाई होती है अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जिसे रैशनैलिटी कहा जाता है. वेबर ने बिलीव किया रैशनलिज्म प्रोडक्ट है साइंटिफिक स्पेशलाइजेशन का और टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का ऑफ द वेस्टर्न कल्चर और डिस्क्राइब किया रैशनलिज्म को as striving for perfection as an ingenious refinement of the conduct of life and attainment of mastery over the external world. वेबर ने देखा फ्यूचर को as that of a world so highly regulated and rationalized जैसे कि हम prisoners बने अपने ही डिवाइस का trapped in an iron cage of our own making. Moving on to assignment 2. Answer the following middle category questions in about 250 words each. So now the word limit for these particular questions is 250 words. Moving on to question 3. Compare the viewpoint of Durkheim and Weber on religion. दोनों के views को compare किया जाएगा on religion topic. Let's discuss the answer. जो मेन कंसर्न था मार्क्स का इट वाज मोर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिस्ट ऑर्डर than with the understanding of religion per sector. In general understanding of capitalism में मार्क ने डेवलप किया जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी एक्सटेंडिंग ओवरऑल almost all social institution especially religion and politics. The model of Marx उनका एक economic base रहा जिसने कंस्ट्रेन किया सुपरस्ट्रक्चर को constituted by religion, politics, arts, etc. मार्क ने बिलीव किया रिलीजन के बेसिस पर और उसके रिलेशनशिप विद कैपिटलिज्म के साथ तीन थीम्स होते हैं. पहला, रिलीजन एक इल्यूजन है जो वेल करता है रियल एक्सप्लॉइटिव कंडीशन सोसाइटी में. सेकेंड थीम स्टेट करता है रिलीजन को एज अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट. And the third theme is that religion can be discarded not through critique of religion but by changing the social condition जो religion को rise देते हैं. एक डुअल फंक्शन रहता है रिलीजन का और ये एक्ट करता है एज आइडियोलॉजी का पॉलिटिकल आइडिया ऑफ सोशल क्लास का ऑफ द रूल एलाइट एंड एज एन ओपिएट ऑफ द मासेस. दुर्खियम ने बिलीव किया कि इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलीजन ये पहले इंपॉर्टेंट है टू फर्स्ट फ्री द माइंड ऑफ ऑल प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ रिलीजन. दुर्खियम ने सपोर्ट नहीं किया नोशन ऑफ रिलीजन को जो कंसर्न रहा विद द मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल फिनोमिना विद गॉड स्पिरिट्स एंड घोस्ट.
Moving on to the next question. What did Weber mean by social action? Social action से मार्क्स वेबर का क्या मतलब है? Let's discuss the answer. मार्क्स वेबर के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी एक कंप्रेहेंसिव साइंस है सोशल एक्शन का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करता है अंडरस्टैंडिंग में फिलोसफिकल फाउंडेशंस को उनके काम के वो उनकी थिंकिंग अलग रही फ्रॉम द थिंकर्स लाइक मार्क्स एंड दुर्किज्म जिन्होंने स्ट्रेस किया ऑन द सोशल स्ट्रक्चर रादर दैन इंडिविजुअल एक्शन ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने के लिए सोशियोलॉजिकल वर्क जो वेबर ने किया उसका मेन एम रहा subjective meaning that human actors attach to their actions with their mutual orientations with specific social historical context. Durkheim ने also deal किया with the institutional arrangements जो sustain हुई cohesion of social structure में लेकिन मार्क्स ने attention दी to class struggles और changing social और economic structures पर ऑन द अदर हैंड वेबर का मेन फोकस रहा सब्जेक्टिव मीनिंग पर जो ह्यूमन एक्टर्स अटैच करते हैं अपने एक्शंस के साथ अपने म्यूचुअल ओरिएंटेशन में विद स्पेशल सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो चार मेजर टाइप के सोशल एक्शन रहे वेबर की अकॉर्डिंग दे वर ट्रेडिशनल इमोटिव अफेक्टिव वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल rational purposeful action value rational action affective action and traditional action. Moving on to the next question. Distinguish between mechanical solidarity and organic solidarity. Let's discuss the answer. Mechanical solidarity को define किया जा सकता है एक social integration एक society के members का जिनके common value और belief रहते हैं which are काम करते हैं internally एक individual member को जो आपस में cooperate करें डुर्खेम ने ओपिनियन दिया कि फोर्सेस जो कॉज करती हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को आपस में कॉपरेट करने के लिए काफी ज्यादा इंटरनल एनर्जीज के जैसा है जो मॉलिक्यूल्स को कोहेर करता है सॉलिड की फॉर्मेशन में उन्होंने टर्मिनोलॉजी को ड्रॉ किया लाइक फिजिकल साइंस इन कॉइनिंग द टर्म मैकेनिकल सॉलिडारिटी मतलब फिजिकल साइंस को रिलेट किया मैकेनिकल सॉलिडारिटी से मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करें तो ये रेफर करता है कनेक्शन को कोहेजन को इंटीग्रेशन बॉन्ड को फ्रॉम होमोजेनिटी सिमिलर वर्क एजुकेशन रिलीजियसिटी लाइफस्टाइल नॉर्मली स्मॉल स्केल में ऑपरेट करें तो सोसाइटीज मैकेनिकल सॉलिडारिटी ऑफन करती है फेमिलियल नेटवर्क्स को इसे व्यू किया जाता है एज फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग सबमर्ज्ड इन अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का जन्म हुआ फ्रॉम द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एक मोर एडवांस सोसाइटी में पर्टिकुलरली प्रोफेशनल डिपेंडेंस ऑल्दो इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं अलग अलग रोल सोसाइटी में और उनके अलग वैल्यूज और इंटरेस्ट रहते हैं there's a cohesion जो अराइज करता है कंपार्टमेंटलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन से which is woven into modern. Moving on to assignment 3. Answer the following short category questions in about 100 words each. So now the word limit for the given questions is 100 words. Question 6. What do you understand by dialectical materialism? Let's discuss the answer. The basis law of dialectical materialism को define किया गया है as follows. First is the law of transformation of quantitative to qualitative change. यहाँ पर द राइटर्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलोसफी ने लिखा डायलैक्टिक्स को द मोस्ट कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफाउंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये हार्ट एंड सोल है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के थियोरेटिकल फाउंडेशन का डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चेंज और एवोल्यूशन होता है लोअर से हायर तक का फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव कभी भी स्लो नहीं होता और ये ग्रेजुअल होता है स्मूथ होता है इन अ सडन अब्रप्ट मैनर द रियल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इनविसेज करती है सच ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट इज लॉ ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रगल्स ऑफ ऑपोजिट्स हर फिनोमिना को डिफाइन किया जाता है सर्टेन ऑपोजिट और कॉन्ट्रोडिक्शंस के साथ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फिनोमिना फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो दो एंटेगोनिस्ट क्लासेस रही इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स एटीट्यूड्स आर द टू क्लासेस जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं और एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड विच इज ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्शन एंड इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द ऑपोजिट्स Next is the law of negation and negation.
मार्क्स ने कहा, इन नो स्फीयर कैन वन अंडरगो अ डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिंग वंस प्रीवियस मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। नेगेशन एक इनएविटेबल और लॉजिकल एलिमेंट होता है डेवलपमेंट का। मार्क्स एंड एंजल्स दोनों ने कहा that a very powerful precondition of social development is the negation of previous existence। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नेगेशन एक्चुअली में है क्या। एंजल्स के अनुसार नेगेशन डायलैक्टिक्स में सिंपली सेइंग नो को इम्प्लाई नहीं करता या कुछ ऐसा डिक्लेयर करने में जो ना एग्जिस्ट करती हो या किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने में जो किसी को पसंद हो, बट इंस्टेंट उनके अनुसार ये नेगेशन होता है क्वालिटेटिव स्टेट का और नए स्टेट की फॉर्मेशन का। ये स्टेम करता है फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ द फिनोमेना एंड रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रगल बिटवीन इंटरनल ऑपोजिट फोर्सेस एंड टेंडेंसी। ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द लोअर एंड द हायर। Moving on to the next. What is social realism? Let's discuss the answer. Durkheim ने social explanations के बारे में कहा of all circumstances और witness किया society को as sui generis and have an existence prior to the individual। उन्होंने ओपिनियन दिया कि इंडिविजुअल फिनोमिना इकोनॉमिक और यूटिलिटी एक्सप्लेनेशन के साथ सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड दुर्खिम ने बिलीव किया कि सोसाइटी प्रिसीड करती है इंडिविजुअल और सोसाइटी को और इंडिविजुअल को आर इनसेपरेबल। सोशल कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट ऑन द इंडिविजुअल और उनके एक्शंस स्ट्रिक्टली यूटिलिटरियन और इकोनॉमिकली ड्रिवन नहीं होते। सोशल रियलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ दुखिज्म काफी ऑपोजिट रहा इंडिविजुअलिज्म और नॉर्मलिज्म ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने बिलीव किया कि एक मॉडर्न सोसाइटी बेस्ड होती है कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सचेंज पर ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। Moving on to the next. Which elements must be present for a system of authority to exist? Let's discuss the elements. Elements include होते हैं individual ruler, master of group or masters, individual group जो rule किया जाए, the will of the ruler to influence the conduct of rule which may be expressed through commands, evidence of the influence of the ruler in terms of compliance or obedience, direct or indirect evidence के साथ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल रेंट्स ऑफ लैंड टू पब्लिक इम्पोजेस कुछ बेसिक्स को हाईलाइट किया। हेवी प्रोग्रेसिव और ग्रेजुएटेड इनकम टैक्स, अबॉलिशन ऑफ ऑल राइट एंड इनहेरिटेंस, confiscation of the property of all immigrants and rebels, and so on। Moving on to the next question, what are the main features of communism? कम्युनिज्म के मेन फीचर की डिस्कशन करें तो कम्युनिज्म ओरिजिनेट हुआ मिड 1830s में, जहां ये मेंबर्स ऑफ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी पार्टीज द्वारा यूज किया गया। ये रेफर करता है पॉलिटिकल मूवमेंट को वर्किंग क्लास के एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ये ऑल्सो रेफर करता है फॉर्म ऑफ सोसाइटी को जिसमें वर्किंग क्लास क्रिएट करती है स्ट्रगल को एज अ रिजल्ट। Moving on to the last question, explain the difference between normal and pathological social fact। Let's discuss the answer. Durkheim also distinguished between normal and pathological social facts। उनके अनुसार ये एस्पेक्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं साइंटिफिक स्टडी को ऑफ ह्यूमन बींग्स जो हेल्ड बैक रहा टू लार्ज डिग्री बाय द टेंडेंसी ऑफ मेनी राइटर्स टू कंसिडर एज पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बिहेवियर, जो अपने खुद के टर्म से डिफरेंट रहा। साइंटिफिक नेचर ऑफ स्टडी ऑफ मेडिसिन इंप्रेस की गई दुर्खिम ने और उन्होंने ओपिनियन दिया कि स्टडी ऑफ बोथ द फीचर्स हेल्प करते हैं एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में और नेचर ऑफ बॉडी के बारे में जानने में। उन्होंने यूज किया मेथड को सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने के लिए। He also explained the normal features in the first two parts, the abnormal features of the third part of the book while studying the division of labor। उनके अनुसार दोनों क्राइम और पनिशमेंट नॉर्मल है। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.